यूज नहीं कर सकते. So we cannot study these molecules using microwave spectroscopy. Is this clear? What is the first condition? The condition is that for any molecule to be microwave active क्या होना चाहिए? Condition क्या है? It should have permanent dipole moment. Should have a permanent dipole moment. यहाँ पे देखिए. So for example, if you have this molecule, hydrogen HCl, yeah, CH3Cl, they all have dipole moments, so they are microwave active. All right. Now your molecules are going to rotate. So the this is an assumption that molecules are, we're going to talk about rigid diatomic molecule. What's the meaning of rigid diatomic molecule? Rigid मतलब क्या? What's the meaning of rigid? Fixed. हाँ, okay, यहाँ पे rigid का मतलब मैं आपको ये बताता हूँ. Suppose you have a molecule, diatomic molecule. कोई एक diatomic molecule बताओ जो microwave active है. Please, any diatomic HCl. molecule. HCl. So okay. Now HCl rigid means that the bond is not vibrating at all. Is it clear? What's the meaning of rigid? Rigid means, see, when you have a molecule, HCl molecule, and if it is rotating, during the rotation, its bond distance does not change. Is this clear? Yes, sir. Now, we know from our experience, and we know that it is not correct because every bond is vibrating. What's the meaning of vibrating? What's the meaning of every bond is vibrating? Bond length can be changed during rotation. Can be nahi. Bond length is always changing. So even if you have a molecule, ऐसे, if you have, अभी हम लोग let's say you have this HCl molecule. Remember that this distance is not fixed. Why? This molecule is always vibrating. अभी you can think of a spring जैसा. Okay? अगर think, now you can think of something like, if you take two balls, छोटे से दो बॉल को आप लोगों ने क्या किया, एक डंडे में लिया, एक स्टिक को लिया, और उसके एंड में दो बॉल को बांध दिया. And think of another example where you take the same two balls, but instead of taking a stick, you put it across a spring. Spring मालूम है क्या होता है? Yes, sir. आपके पेन के अंदर स्प्रिंग होता है. दोनों में क्या फर्क होगा? Vibration will be seen in the spring one. हाँ, वाइब्रेशन तो जाने दो, वाइब्रेशन वाली बात नहीं. ये कि हम लोग ये देखेंगे कि the distance between the two balls are same in which one? In the stick. Stick में. तो rigid का मतलब है it's as if your two atoms are combined using a stick. तो आप उसको कुछ भी करेंगे, you rotate it, you move it, you throw it around, उसके भी जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो चेंज होगा कि सेम रहेंगे? सेम रहेगा सर. सेम रहेंगे. एंड
just for your information, I am also telling you that in reality, the a molecule does not resemble two atoms joined by sticks. वो आपके दो स्प्रिंग से जुड़ा हो वैसा होता है असलियत में. ओके, तो हम लोग जब रिजिड ये एटम बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट वी आर टेकिंग एन assumption. Rigid diatomic molecule, does it represent the correct the true molecule? No. No, but because the mathematics becomes easier if we consider a rigid diatomic molecule. So what we are going to do is first we are going to consider a diatomic molecule which is rigid, and at the end of it we will remove the condition of rigidity. Is this clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now you have these two uh, this molecule where it is atom A and atom B, and they are joined. The distance between them is r. Is r fixed or is r variable? Fixed. Fixed, because we have assumed that it is a rigid diatomic molecule. Okay. Now this is your center of mass C. इसको मालूम है सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है, देखिए अगर आप अपने हाथ में अभी तुम्हारे पास पेन है. Sir, the point at which the mass is concentrated. हाँ, हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल सकते हैं. अगर ये आपने पेन लिए, आप क्या करो, यहाँ पे अपने पेन को अपने हाथ में बैलेंस करके देखो. तो तुमको हाथ किधर रखना पड़ता है? इधर रखना पड़ता है, इधर रखना पड़ता है, कहाँ रखना पड़ता है? बीच में रखना पड़ता है, कहाँ रखना पड़ता है? बीच में. बीच में. तो इसका मतलब है इस पेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे. लेकिन अगर आप देखेंगे कि सपोज अभी देखो पेन को ढक्कन डाल के देखो, यानी पेन जो है इधर से भारी हो जाएगा, तो आप क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा? बीच में रहेगा कि शिफ्ट Right side. करके देखो. तो हम लोग देखेंगे कि जो भारी चीज है सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच से उधर शिफ्ट होता है. यहाँ पे देखिए यह ए एंड बी दो एटम्स हैं. कौन ज्यादा भारी लग रहा है तुमको? B. बी. तो हम लोग ये देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास है, अगर आप देखेंगे तो बीच विल बी समवेयर हियर. सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now r1 is the distance between A and center of mass. R2 is the distance between B and R2, and R will be equal to R1 plus R2. Please remember, R1 and R2 are not the bond distances. Bond distance is R. ठीक है? Yes, sir. Okay. At center of mass क्यों बैलेंस क्यों हो रहा है? Because m1 is equal m1 r1 is equal to m2 r2. So let's write this down. So at center of mass, the masses are balanced, so we become m1 r1 is equal to m2 r2, right? But r1 is equal to, now we have this condition, r1 plus r2 is equal to r. So r1 is equal to r1 किसके बराबर हो गया? r1 is equal R to minus R2. r minus r2. And what is r2? r minus r1. 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 तो यहाँ पे जस्ट चेक हियर. सो m2 r2 की जगह पे क्या डाल दिए? r minus R r1. minus R minus R1. r1 की जगह पे r minus r2. ठीक है? Now if you open this, now from here m r1 is equal to m2 r2 की जगह r minus r1. Now let's open this. m1 r1 is equal to m2 r
minus m2r1. So now this will come this side. So यहाँ से क्या हो जाएगा, m1r1 plus m2r1 is equal to m2r. यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, r1 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 plus M2. plus m2 is equal to m2r. So r1 is equal to m2 divided by m1 plus m2r. यहाँ तक ठीक है. Yes, sir. Likewise you can do that. r2 is equal to, सेम वैसे कर सकते हैं हम लोग. यहाँ इसमें ये कैसे किया गया, ओवर हियर आई सब, यहाँ पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया था ये लाने के लिए. दूसरी बार आई विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड कीप दिस हियर एंड आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to m1r1 square प्लस, ये हमारे पास फॉर्मूला है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equal to m1r1 square is equal to m2r2 square. Okay, so m1r1 square can be written as m1r1 into r1, m2r2 square can be written as m2r2 into r2. Now I know that m1r1 is equal to m2r2, so I can substitute m1r1 by m2r2. So this becomes m2r2 r1 plus m2r2 r2. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ so you can r1 r2 दोनों में कॉमन है, so m1 plus m2 r1 r2, right? So m1 plus m2 into r1 into r2. तो ये लोग ने क्या किया है, ये r1 की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया. So it becomes m2r m1 plus m2 एंड r2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया. ठीक है. नाउ दिस m1 plus m2 ये कैंसिल हो जाएगा. सो I इज इक्वल टू क्या बचा, m1 into m2 r square divided by m1 plus m2 is okay. And this term, this is called reduced mass mu. तो I is equal to क्या हो गया, so let's write this down. I is equal to mu r square, where mu is called the reduced mass. It is given by m1 m2 divided by m1 plus m2. ठीक है, is okay. Yes, sir. Okay, Yes, sir. तुम लोग को reduced mass निकालने आना चाहिए. Let's find out the reduced mass of HCl. फॉर्मूला क्या है, लेट्स डू दिस. मैं पहला आपको करके बताता हूँ, फिर दूसरा आप लोग करेंगे. लेट्स फाइंड आउट द रिड्यूस्ड मास ऑफ HCl. H का मास इज 1, Cl का मास कितना है, 35.5. 35.5. Okay, so let's find out mu is equal to m1 into, आप लोग ये लिखो मेरे साथ, m2 डिवाइडेड बाय, क्या है फॉर्मूला, m1 Plus M2. Plus 35.5. ओके. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस यूनिट इज, तुम्हारे पास फॉर्मूला इतना ही है, बट रिमेंबर योर रिड्यूस्ड मास right now will be in terms of atomic mass unit, which you want to convert in at least in grams. ग्राम्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय Avogadro नंबर. नाउ इट विल बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. निकाल के बताओ कितना आता है.
एंड एज फार एज वी आर कंसर्न इन दिस चैप्टर हम लोग ज़्यादातर CGS में ही रहेंगे, हम लोग SI में नहीं जाएंगे. सो विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स एंड सेंटीमीटर्स एंड वहीं पे रहेंगे. 1.63 हाँ, into 10 raised to minus 24. 10⁻⁻. 24. ओके, आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ. आप कोई भी मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास निकालेंगे, ये वैल्यू लगभग यहाँ पे रहना चाहिए. योर वैल्यू शुड बी इधर 10⁻23 से लेके 10⁻24. तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर पहले से मालूम है. कोई भी रिड्यूस मास हो, हम लोग देखेंगे कि अगर इस रेंज में नहीं आता है तो गलत है. आप गलत कर रहे हैं. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल के बताओ. चलो मुझे देखो, हम लोग को निकालने से पहले मुझे आंसर मालूम है. आंसर कितना होना चाहिए? 10 raised to minus 23 के आसपास. -23 -24 ग्राम्स. ध्यान रखो. प्लीज फाइंड आउट दी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूस मास. एग्जैक्टली जैसे निकाला है वैसे आपको निकालना है. - 1.13 into 10 raised to minus 23. Sir, 1.13 into 10 raised to minus 23. कितना आ रहा है बेटा? 1.13 into 10 raised to minus 23. ठीक है, कम से कम आउटराइट में नहीं बोल सकता ये गलत है. कम से कम रेंज सही है. So 1.13 into करेक्ट आ रहा 10 है. raised to minus 23. सेम आंसर है दोनों का. हाँ जी सर, सर. मेरा भी उतना आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि आपको ये आ सकता, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द रेडियस मास, या फिर हम लोग रेडियस मास निकालना पड़ सकते हैं आगे कुछ करने के लिए. ध्यान रखो, रेडियस मास का रेंज यहाँ पे रहना चाहिए. इज दिस क्लियर? Yes, sir. और अभी अब मैं आपको बता रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू फॉर्मूला क्या है. आई इज इक्वल टू, Mu r square. अभी देखो आई जो है, अब म्यू का वैल्यू लगभग कितना है? 10⁻⁻23 Minus 23. या फिर -24. ठीक है, हम लोग 24 भी देख चुके हैं, है ना. अब आर इज द बॉन्ड डिस्टेंस. बॉन्ड डिस्टेंस लगभग कितना होता है मालूम है? हम लोग कौन सी यूनिट में लेंगे मास, ये सेंटीमीटर की मीटर में? Centimeter. सेंटीमीटर. हम लोग CGS में कर रहे हैं. तो आर का वैल्यू लगभग 10⁻⁻8 होता है स्क्वायर आई. तो इसका वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना आना चाहिए आप बताओ? I should be somewhere between 10⁻⁻39 to 10⁻⁻41. यूनिट क्या होगा? म्यू आर स्क्वायर. यूनिट क्या होगा आई का? म्यू का यूनिट क्या है? Gram centimeter square. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन कीप दिस इन माइंड, ये रेंज के बाहर कभी नहीं होना चाहिए. समझ में आया? इज दिस क्लियर? Yes sir. चलिए आगे करते हैं. Now, if you take a rigid diatomic molecule
उसके एनर्जी इज गिवन बाय दिस वैल्यू. लेट्स राइट डाउन दिस वैल्यू. आप लोग भी लिखो, किताब में लिखो, अपने नोटबुक में. ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1. यहाँ और एक जे है, लेकिन ये जे जो है जूल है. ये जे अलग है, ये जे अलग है. यहाँ पे जे है. प्लस राइट डाउन. पहले आप लोग चाहो तो इसको ऐसा करके जूल करके लिख लो. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यू हैव दिस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, राइट. पहला वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि J इज इक्वल टू 0 बोलेंगे. अगला क्या होगा? J is equal to 1. J is equal to 1, J is equal to 2, J is equal to 3 एंड डॉट 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 डॉट. इसका मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का J इज इक्वल टू 0 का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? EJ इज इक्वल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई. इस J के जगह पे मैं क्या डालूंगा? 0. 0. तो EJ इज इक्वल टू 0 कितना हो गया? अभी आप बताओ मुझे. EJ इज इक्वल टू 0 कितना होता है? H square by 8 pi square I. नहीं, सर 0 होता है. 0 होता है राजा. ये बड़ा सा Sorry नंबर sir. है, इसको हम लोग एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. J इज इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे. E एक ही करूंगा मैं क्योंकि ये काम आने वाला है नहीं. मैं आपको जस्ट नंबर बताने के लिए बता रहा हूँ. EJ इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला आंसर बताओ. H square by 4 pi square I. एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू into 2. 2 इंटू 2. यूनिट जूल. Joule. ठीक है. सो वी हैव दिस. नो, ये सब जस्ट वाज डिस्कशन. ये हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले. सो EJ का मतलब है इट इज द एनर्जी ऑफ द jth रोटेशनल एनर्जी लेवल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes sir. लेकिन हम लोग बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज टॉक ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ इट्स वेव नंबर. वेव नंबर यानी यूनिट क्या होगा? Centimeter inverse. Centimeter inverse. नाउ लेट्स सी. हमारे पास क्या था? E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू h न्यू. H nu. और आई कैन आल्सो राइट Hc by lambda. E इज इक्वल टू h c Seal न्यू बार. wave number. सो न्यू बार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? Hc. hc. So now I'll write like this. What is the meaning of this? This is the energy level of the rotational level in terms of, in which unit? So EJ epsilon j is equal to क्या हो जाएगा? EJ divided by, जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? HC से डिवाइड करते हैं. So now let's substitute. तो ये H और ये H कट जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा. So EJ will be equal to H by, बताओ क्या होगा? 8 pi square I C J into J plus 1. Is this alright? सर एप्सिलॉन जे का फॉर्मूला कैसे निकाले वो समझा नहीं. देखो बेटा, आपके पास एनर्जी है. देखो, लेट्स से एनर्जी इज 5 जूल्स. 5 जूल्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है?
सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स में. अब ये देखिए E इज इक्वल टू 5 जूल्स, बट E किसके बराबर है? hc बाई लैम्डा के बराबर है. हाँ. और hc 1 बाई लैम्डा जो है न्यू बार है, सो 5 इज इक्वल टू hc न्यू बार के बराबर है. सो न्यू बार कितने के बराबर होगा? E के बराबर. E डिवाइडेड बाई hc है ना, ये नीचे जाएगा ना बेटा. हाँ. सो ये जूल में है, उसको सेंटीमीटर इनवर्स में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? hc से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये जो है मेरा जूल में था, अगर मुझे इसको सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय hc. hc आ जाए क्या हो जाएगा? h कट जाएगा, c आ जाएगा. सो एप्सिलॉन j इज इक्वल टू h 8 पाई स्क्वायर ic j into j plus 1. And this is normally denoted by b. b is called rotational constant. ठीक है? Yes, sir. So what are the, for any diatomic rotating rigid molecule, its energy levels are given by Ej is equal to, बताओ क्या? P J J into J plus J 1. plus 1. unit सेंटीमीटर इनवर्स. where, अब दो है, what is B is equal to rotational constant है, it is equal to 8 divided by 8 pi square IC, and J का वैल्यू क्या क्या है? 0 1 2. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो अभी हम लोग ये काम करते हैं, चलो हर एक एनर्जी निकालते हैं. आप लोग निकालो, कम से कम 6-7 तक निकालते हैं. नाउ दिस इज J इज इक्वल टू 0. इसका एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. EJ is equal to 0. 0. Very good. For J is equal to 1, what will be EJ is equal to? Two. 2B. हाँ B कहाँ जाएगा? हाँ सर. J is equal to 2. J is equal to 2 क्या होगा? यहाँ 2 डाला 6B. 6B. हाँ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. 2 into 3 is 6B. अगला 12p. 12B. ओके, मैंने जहां तक बनाया वहां तक करते करते. अगला 20b. अगला 30b. अगला 42b. 42B. लास्ट 56b. प्लीज रिमेंबर, इसके ऊपर भी है, मैंने जस्ट बनाना छोड़ दिया. नाउ for a diatomic rigid molecule, rotating molecule, the selection rule is delta J is equal to plus minus 1. मैंने आपको कल सिलेक्शन रूल के बारे में बताया था. डेल्टा J is equal to plus minus, डेल्टा J is equal to plus 1 का मतलब क्या है? 0 से 1 गया, 0 से 1 गया तो डेल्टा J will be plus 1, क्योंकि तो इनिशियल J का वैल्यू क्या था? J initial is 0. J final is 1. 1. So what is delta J? J final minus J initial is how much? +1. Plus 1. Please remember, only plus minus 1 is possible. Minus 1 यानी कहाँ से कहाँ?
1 से 0 है। J1 से J0. 1 से 0. So now see this. If you have molecule in this, ये molecule किधर excite हो सकता है? J is equal to 0 से कहाँ जा सकता है? J1. J is equal to 1 पे 1 पे. कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा? 2B. 2B. ठीक है ना? यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसके पास ये कहाँ जा सकता है? 0 पे भी जा सकता है और 0 2 पे. जाएगा तो क्या होगा? 0 जाएगा तो क्या करेगा वो? एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा? -2B. एमिट करेगा। एमिट करेगा. एमिट करेगा. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एब्सॉर्प्शन. एमिशन के बारे में अभी बात नहीं करते हैं. तो J इज इक्वल टू जो है J इज इक्वल टू 2 को जा सकता है तो कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा? 4B. Okay? बताते चलो. 6B. 8B, 8B. 8B, 10B, 10B, 10B. 12B, 12B, 14. 14. ठीक है? What it means is, if you see this, तुमको पहला जो लाइन है, पहला एब्सॉर्प्शन लाइन तुमको 2B पे दिखेगा. ये 2B पे. ये कौन से एक्साइटेशन की वजह से है ये? From 0 to 1. ये J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 का एब्सॉर्प्शन के लिए. ठीक है? अगला लाइन कहाँ पे दिखेगा तुमको? अगला एब्सॉर्प्शन कहाँ पे दिखेगा? 4B, 4B. 4B किसके कौन से एक्साइटेशन के लिए होगा? J1 to J2. This is for 1 to 2. अगला ये तुम्हारा 4B पे होगा. अगला लाइन तुमको कहाँ पे दिखेगा? 6B, 6. वो किसकी वजह से होगा? 2 to 3, 6B 2 to 3. अगला 8B, किसकी वजह से? 3 to 4, 3 to 4. अगला 10B, वहां तक चलते हैं. 10B 4 to 5, किसकी वजह से? 4 to 5. अगला 12B, 12B 5 to 6, की वजह से. अगला 14B, अगेन प्लीज रिमेंबर इसके आगे भी है, मैंने जस्ट बनाना छोड़ दिया. So what we learn from here is, if you have a rigid diatomic molecule rotating, you get a series of lines, correct? And what is the distance between two consecutive lines? टू बी. सबके सब 2B है. देख रहे तुम लोगों को? देखो कोई भी लाइन पकड़ो, हर एक जो दो कंसेक्यूटिव लाइन है उनके बीच जो फर्क है वो कितना है? 2B. 2B. So let's write down that the rotational spectrum of a rigid diatomic molecule, spectrum कैसे दिखते हैं आपको? It consists of series of what? Series of equidistant lines. And the distance between any two successive line is how much? 2B. टू बी. 2B. Is this clear? Yes, sir. तो अभी मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर आगे जाएंगे. ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे ये सब है.
वही सर कर लेना, ठीक है। हाँ ये देखिए, now let's read this. The first line, किताब दिख रहा है तुम लोगों को? The first line of CO is observed at this much. पहला लाइन तुमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला लाइन यानी कहाँ से? 0 से ना। So this number will be equal to 2b. समझ में आया? Yes, sir. तो आपको इससे क्या निकालना है? You have to calculate the moment of inertia and bond length r. तो मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। So this is equal to 2b. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This difference should be always in terms of centimeter inverse. हम लोग कुछ न्यूमेरिकल में देखेंगे, हर्ट्ज में दिए होंगे, तो हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा? पहले सेंटीमीटर इनवर्स में करना पड़ेगा, फिर उसके आगे जो भी होता है। सो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सो कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। 2b इज इक्वल टू 3.84235 यूनिट। सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, राइट? यहाँ तक ठीक है। अभी हमको I निकालना है, R निकालना है। नाउ वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, B इज इक्वल टू H बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो I कितने के बराबर हो जाएगा? H डिवाइडेड बाय 8 pi square 8 BC. pi square b. 8 पाई स्क्वायर बी सी। ओके, अभी देखिए मैं सीजीएस में काम कर रहा हूँ, तो H की जगह पे मैं क्या डालूंगा? 10 टू माइनस 27. 27 डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर। b की जगह पे आई विल पुट दिस 3 नहीं यानी 1.92118, और c की जगह पे मैं क्या डालूंगा? 3 into 10 raised to क्या 10. 8. 10? नहीं राजा, 8 क्यों? 8 ऐसा ही है, मैं सीजीएस पे काम कर रहा हूँ, सेंटीमीटर पे। हाँ सर। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। बिफोर सॉल्विंग आई का रेंज क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था, आई का रेंज क्या होना चाहिए? -39 से लेकर 40 तक। 41. हाँ तो हम लोग सॉल्व मत करो अभी, क्योंकि तुम्हारे पास किताब है, तो किताब में सॉल्व है। लेट्स सी दिस। देखो ये डाला है डाला है डाला है। आई का वैल्यू कितना आया? हाँ ये रहा। आई का वैल्यू कितना है देखो, 1.4 into 10 raised to -39. हाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको आर निकालना था ना, बॉन्ड डिस्टेंस निकालना था। नाउ आई इज इक्वल टू, एक बार आई निकल गया है, हम लोग क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। आई का वैल्यू मालूम है, ये आई का वैल्यू है। म्यू का वैल्यू तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। ध्यान रखो, इसको ग्राम में करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा? म्यू कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 plus 60 12 प्लस 16 इंटू 1 बाई Avogadro number, अवोगाड्रो नंबर। ये किस में आएगा? gram में। ग्राम में। तो ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। आर का वैल्यू स्क्वायर रूट है, तो आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आर का वैल्यू आपको आएगा सेंटीमीटर में, होगा? Yes, sir. सबको होगा? Yes, sir. अभी देखो मैं ये जो प्रॉब्लम है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्फ। और ये सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HF हैज लाइंस 41.9 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या बोलो, इसका मतलब क्या है?
व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? डिस्टेंस। तो ये कितने के बराबर है? 2b. ये 2b के बराबर है। तो यहाँ से b निकालो, b से i निकालो, i से r निकालो, तो उसके लिए म्यू लगेगा। कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ ऑंगस्ट्रॉम में देखो, ऑंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में किया तो क्या करना पड़ता है? इंटू 10⁻²। ये याद रखो तुम लोग, ये गलती करोगे तो सब गलती हो जाएगा। सो दिस योर r 10⁻² -8 centimeter. -8। यहाँ से आपको म्यू निकलेगा, म्यू। Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखो, और एक दूसरी बात, CL होता है 35.5, लेकिन अगर तुमको ऐसे दिया जाए CL 35 है, विच मीन्स दे हैव यूज्ड अ 35 आइसोटोप ऑफ CL, तो इसको 35.5 नहीं करना पड़ेगा, तुमको 35 ही करना पड़ेगा। म्यू है, R है, दोनों से क्या निकल जाएगा? I. I। तो तुम्हारा सवाल ही वही है, म्यू निकालो, I निकालो, निकलेगा। Yes, sir. म्यू का वैल्यू देखो, लगभग वो आ रहा है उस रेंज में। हाँ. ये गलत है, -14 Minus. माइनस होना चाहिए। यहाँ देखो -24 है, -16 है, दोनों मिला के +40 कैसे होगा? Yes, sir. ओके, तो ये सब सॉल्व है, आप लोग के पास है तो आप लोग कर सकते हो, तो मैं आपके छोड़ता हूँ। एक आध अनसॉल्व करते हैं, और थोड़ा जो मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं सॉल्व करने आएगा वो सॉल्व करके मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली तुम ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ के बताओ, किसी को आइडिया आया कैसे सॉल्व करना है? Anybody? सर सॉल्व करना Sir, है। 1.42. अशफाक तू बोल। गिवन सर, हाँ, क्या क्या गिवन है, कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तू बता। डिस्टेंस दिया हुआ है सर, r दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे एंगस्ट्रॉम करेंगे? को। 1.42 इंटू 10⁻⁷ मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁸। हाँ 10⁻⁸ उतना याद रखो, 1.42 इंटू 10⁻⁸। सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या है? म्यू फाइंड करेंगे सर, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। M1 क्या लेंगे? m1 1 लेंगे, h का नंबर लेंगे 1 दिया M2 हुआ क्या है, लेंगे? M2 क्या लेंगे? 79 br का। हाँ, फॉर्मूला क्या है म्यू का? m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये इंटू 1 अपॉन na, ग्राम में कन्वर्ट होगा। वो ध्यान रखो, 1/na बहुत बच्चे भूलते हैं। यहाँ से म्यू निकलेगा, म्यू कौन से रेंज में आना चाहिए अशफाक? 10⁻⁻23 टू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ग्राम्स। उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो। आई फाइंड करना है सर। आई तो फाइंड किया ना? नहीं, आई फाइंड नहीं किया हमने, अभी म्यू क्या फाइंड फाइंड किया, किया? म्यू फाइंड म्यू। किया। उसके बाद आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फॉर्मूले में पुट करके। हाँ, आई कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला बताओ ना। I is equal to mu r square. हाँ, म्यू आर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा आई का? Gram per centimeter square. 9 ग्राम Gram सेंटीमीटर स्क्वायर centimeter होगा। square. Okay. और वो कौन से रेंज में आना चाहिए?
10 raised to minus 39 और minus 41. ज्यादातर 40 में ही रहेगा, एक आध एकदम कुछ हुआ तो उसको 41 में हो जाएगा, नहीं तो 39 40 में रहेगा। हो जाएगा ये आपका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग बी का फॉर्मूला यूज करेंगे ना? हाँ, नहीं, यहाँ पे तो म्यू आर स्क्वायर है ना राजा। तुमको म्यू निकालना है, तुमने म्यू निकाला, आर निकाला, म्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। हाँ सर। ओके, नंबर 16 कोई बताइए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में गलती निकालो। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? देखो कौन कौन है। फहीमा, फहीमा खान, रेशमा सैयद, Yes, sir. आप पढ़ो बेटा। The microwave spectrum of HI molecule consists of a series of equidistant lines with a spacing of 12.8 per centimeter. Calculate the moment स्टॉप of स्टॉप inertia. स्टॉप 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 स्टॉप। पहले लाइन से क्या क्या समझे, क्या निकाला, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या है, बताओ मुझे। बोलिए। रेशमा, सर डिस्टेंस है 12.8 पर सेंटीमीटर. तो ये क्या है? दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम लोग उसको किसके बराबर मानते हैं? B. टू नहीं बी। रहते हैं। 2B. 2B। तो पहली बात ये है कि व्हाट यू नीड टू राइट डाउन इज, यू कैन राइट डाउन 2B इज इक्वल टू, 12.8 पर सेंटीमीटर. तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिक्स पॉइंट फोर 6.4 यूनिट, यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स। inverse. ओके, आगे पढ़ो। Calculate the moment of inertia and the internuclear distance of HI molecule. क्या क्या निकालना है? Moment of inertia. यानी I. आपको ये देखिए, आपको निकालना क्या क्या है, आपको आई निकालना है और क्या निकालना है? R. R. आर निकालना है। गिवन क्या क्या है, व्हाट डू यू नो? M1 M2। हाँ, यहाँ पे है, ये M1 है, ये M2 है। ये गलत है, देखो क्या गलत है इसमें। हाँ क्या सर, गलत है? -27 आएगा, 10 माइनस 27. ध्यान रखो, ये हमारी ये किताब है, बहुत अच्छा किताब है, तो इसको संभल के पढ़ना पड़ता है। ये -27 करो, नहीं तो तुम्हारे आंसर कुछ नहीं आएंगे। यू हैव बी, बी कितना है? 6.4 6.4 यूनिट। per centimeter. डू यू हैव म्यू? यस सर, Yes, sir. ओके, तो कैसे निकालेंगे? चलो आप कोई बताओ मुझे, आई कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है?
h upon 8 pi square IC. 8 पाई स्क्वायर आई सी। देखो अब इसमें तुमको बी मालूम है, एच मालूम है, 8 पाई स्क्वायर तो मालूम है ही है, सी मालूम है। सी का वैल्यू क्या लेंगे? 3 into 10 raised to minus 8. नहीं रे राजा, माइनस नहीं होता है, सी Minus का 10 sorry माइनस sorry नहीं, 10 10 10। +10 हाँ, यहाँ से आई निकलेगा। अभी सब कुछ तो मालूम है, आई नहीं मालूम, आई निकलेगा Yes, sir. और आई के बाद आर निकलेगा, yes sir. क्योंकि म्यू मालूम है तुमको। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। आई तुमने निकाले, म्यू तुमको मालूम है, आर का वैल्यू निकालो। होगा ये? Yes sir. Yes, sir. करेंगे 2 मिनट में। लेट्स डू दिस। सो b इज इक्वल टू 6.4, यहाँ तक तो हो गया मेरा, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? सो i इज इक्वल टू h बाई 8 पाई स्क्वायर बी सी। सब्स्टिट्यूट करो, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर। बी क्या था? 6.4 था। सी की जगह क्या डालेंगे? 3 इंटू 10⁻10। ये आई के बराबर। हम लोग ऑलरेडी आई का ये मालूम है, रेंज मालूम है। कोई एक निकाल के बताओ, कोई एक यानी हर कोई। अमीना, अशफाक, विद्यापति, फहीमा, मुस्कान, रेशमा, सना, सोनल। Sir, आज ये, हाँ बोलो बेटा। 2.8 into 10⁻39. ठीक है, अब मुझे मालूम है नहीं कि आपके सही है गलत है, लेकिन कम से कम नंबर तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। 2.8 into 10⁻39. और देखो तुम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना 3-4 नंबर लिखो यहाँ तक, यहाँ पे मत रुको। 2.800 हम्म, और into एक 10 raised to और एक 1 1 1 10⁻² into 10⁻39. यूनिट। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, बाकी लोग इसको कंफर्म करेंगे। कौन, ये सना है क्या? जी सर. ओके, म्यू का वैल्यू निकालो। मॉलिक्यूल कौन सा है? कौन सा मॉलिक्यूल था? एच आई ना? एच आई सर. हाँ, म्यू विल बी 1 into 127 divided by 1 plus 127 into 1 by 6.022 into 10⁻23। चलो इसका आंसर निकालिए। वन पॉइंट सिक्स फोर into 10⁻24. यूनिट ग्राम। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई म्यू। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.8001 into 10⁻39 divided by 1.64 into 10⁻24। इसको सॉल्व करो बेटा, तो इससे डिवाइड करो।
कितना है, इसको डिवाइड करो, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर. 1.707 1.707 into 10 raised to minus 15. माइनस 15 आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो आर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. Square root हो जाएगा. कितना आ रहा है? Four point 131 into 10 raised to minus 8. ओके, अभी यूनिट बेटा. Centimeter. ओके, तो बाकी लोग मुझे कंफर्म करो, आर का वैल्यू ये है, आई का वैल्यू ये है, और म्यू का वैल्यू ये है. चलो प्लीज कंफर्म दिस. सर आई का वैल्यू 4.370. ओके, ये कौन है? सोनाली. सोनाली का 4.370 into 10 raised to minus 40. ओके, देखो सना, तुम्हारा इसमें फर्क आ रहा है. म्यू का वैल्यू 1.64 into 10 raised to minus 24. ओके, ये दोनों का सेम आ रहा है. तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सर आर का वैल्यू आ रहा है 1.63 into 10 raised to minus 8. एक्चुअली मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. सना, Yes, sir. Check कर रहे sir. तुम्हारा आई चेक करो बेटा, जी सर, जी सर, जो है तुम्हारा आई में. जी सर. लेकिन ये जरूरी नहीं कि सोनाली का सही है, बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे. अशफाक, नंबर बताओ बेटा. विद्यापति. सर म्यू की वैल्यू है 4.3707 into म्यू. 10 raised to power, नहीं आई सॉरी आई हाँ हाँ, क्या? 4.3707 ओके, into तो 10 raised to power minus 14. ठीक है, तो तुम्हारा इसके जैसा आ रहा है, सोनाली जैसा आ रहा है. सोनाली का भी वही है. हाँ, और आर का म्यू की वैल्यू है 1.647 into 10 raised to power minus 24, ओके. और आर की वैल्यू है 1.629 into 10 raised to power minus 8. ओके, ये है अशफाक. चलो, और कौन है? अमीना. अमीना है? जी सर है.
किसमें प्रॉब्लम हो रहा है? कौन कौन है आज? मोहसिना नहीं है, सबिया नहीं है, रेगुलर के बच्चों में। मुस्कान तेरा क्या हो रहा है बेटा? मुस्कान खान है? मुस्कान खान है? ये सब लॉग इन करके कहाँ कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। अमीना तेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? सर मैंने पावर के वैल्यूज गलत लिखी थी। किसमें? सर मैंने h का वैल्यू 10⁻27 लिया था पहले। हाँ सही है ना, लेना सॉरी, चाहिए। 10⁻21 लिया था। सर अभी 27 के साथ ले रही हूँ। सर मेरा म्यू सेम आया है, हम्म, मैं आई देख रही हूँ अभी। सर आई हमारा आया 4.375। पहले क्या गलती किया था राजा? सर हमने बी से उसको डिवाइड नहीं किए थे। हाँ, फिर ऐसे छोटी छोटी गलतियां हैं, यही पे मार्क्स जाते हैं बेटा। ठीक है, तुम लोग के पास इसका रिकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे खत्म, ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है? दोबारा देख लेना जिनके नहीं आए। आई थिंक ये आंसर सही है, 1.63 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये सॉल्व करेंगे और आज का क्लास खत्म हो जाएगा। सो विल रीड दिस फॉर मी। सना, आप पढ़ के बताओ। जी सर। The microwave spectrum of carbon monoxide gas consists of following lines. J is equal to 0, J is equal to 1 is to 1.15 into 10 raised to 5 mHz, और J is equal to 1 से एरो है ना, हाँ J is equal to 1 से J is equal to 2। हाँ to 2.30 into 10 raised to 5 mHz। MHz यानी क्या होता है? हाँ हर्ट्ज में सर। लेकिन M क्या है? मेगाहर्ट्ज। मेगा यानी क्या होता है? 10⁻6। 10⁻6। ओके, तो अभी तुमको क्या क्या मालूम है? चलो, इट्स ओपन टू एवरीबॉडी। टेल मी इसमें क्या क्या है, क्या क्या निकालना है, क्या 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 करना है। चलो, जिसको जो जो सोचता है बताते जाओ। सर 2v का वैल्यू और 2b का वैल्यू कैसे, कहाँ है? नहीं है सर। सर 1.15 into 10 raised to 5 megahertz. नहीं ना That is राजा, 2v. नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं तुम लोग को ये चैप्टर लिया हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। बी प्लीज रिमेंबर हैज टू बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर जूल को सेंटीमीटर इनवर्स करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? HC से डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अभी आप मुझे बताइए, हर्ट्स को अगर मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी से डिवाइड। नाउ आई हैव माय फॉर्मूला इज न्यू इज इक्वल टू क्या है? C by लैम्बडा। lambda. So nu is equal to, in terms of wave number, C by C lambda. by Wave number. by. Multiply by. So nu bar is equal to क्या हो जाएगा, आप बताओ? Frequency divided by C. तो जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम लोग C से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू मिल सेंटीमीटर। जाएगा। हाँ, तो अभी now let's do this. Let's find this value first in terms of centimeter inverse. So
लिखिए म्यू इज इक्वल टू, पहला म्यू वन जो है इट इज 1 पॉइंट, देखो मेरे साथ, 1.15 इंटू 10⁵ मेगा यानी 10⁶. 10⁶ हर्ट्स। निकालो इसको, कितना हो गया ये? सो दिस इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻11 10⁻11 यूनिट 11. hertz. नाउ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सो Divided by 1.15 इंटू Speed of 10⁻11 डिवाइडेड बाय क्या? 3 into 10⁻10. वेरी गुड। अब यूनिट क्या आएगा? Per centimeter. नाउ जस्ट टेल मी दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर? 3.8. बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। नहीं है सर. एग्जैक्ट 3.8 है क्या? हाँ सर. No, sir, 1.15 3.833. देखो ना भाई लोग, तुम लोग अच्छे से देखो। सर मैं सोची आप एक्सपोनेंट के टर्म में बात कर रहे हैं. 10⁻. I need exact numbers. If required, I need one two odd numbers. सर 3.83333 ऐसा है। ठीक है, 4 3 तक लिखते हैं इंटू 10⁻, कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर. ये आपका पहला है। वैसे आप सेकेंड लाइन का पोजीशन निकाल सकते हो। सेकेंड लाइन का पोजीशन निकालो, निकलेगा। इट विल बी 2.30 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻10। आया ये? 7.666. ठीक है, जो भी है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2b. वो 2b होगा, समझे? हाँ सर. चलो आगे तुम लोग निकालो, निकलेगा? जी सर. चलो चलो, अभी 5 मिनट में हर कोई निकालो।